Hello students, welcome to Adishri Publication. In our today's EVS class, we are going to see your chapter number 3 and the name of your chapter number 3 is Senses in Animals. Okay, so what topic we are going to cover in this chapter? Let's see. In concept overview, senses in animals. Okay, do animals sleep, animal products, animals in danger, how can we protect wildlife, and as well as the organizations that care for animal. Okay, and along this concept overview, my dear students, we are also going to see some curricular goals. What are those? Let's see. Understand the 5 senses and their function in human and animals. Okay, compare how different animals use their senses to survive. Then develop observational skills through activities related to senses. Okay, so all this topic we are going to see in your entire chapter. Okay, so come with me and let's explore the chapter. Okay, see, sense organs are important parts of our body. They keep us aware of our surrounding and respond to a situation in a suitable way. So my dear student, here question comes, what is sense organs? Sense organs क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. ठीक है, ये हमें बताते हैं कि हमारे आसपास चल क्या रहा है. ठीक है, देन like us, animals do have sense organs that help them to survive in the environment they live in. They use their sense organs to respond to different stimuli such as sound, साउंड, हीट, लाइट, स्मेल एक्सेट्रा. जिस तरीके से माय डियर हम ह्यूमंस के पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वैसे एनिमल्स के पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, और ये उन सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सेंसेस इन एनिमल्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट, ऑल एनिमल्स हैव सिमिलर सेंसेस बट मोस्ट ऑफ देम हैव डेवलप्ड अ पर्टिकुलर सेंस टू मैच देयर स्पेसिफिक सर्वाइवल नीड्स. सारे एनिमल्स में ना एक जैसे ही सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं. जैसे हम ह्यूमंस में 5 है तो सब में 5 होंगे, चाहे वो बेबी हो, चाहे इन्फेंट हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे ओल्ड हो, सब में 5 सेंस ऑर्गन्स होंगे. ठीक है, उसी तरीके से एनिमल्स में भी होते हैं, लेकिन एनिमल्स कहां पे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने सेंस ऑर्गन्स को ढालते हैं. ठीक है, देन they use their senses to locate food and to sense danger. Okay, and in what way these animals use their sensory organs? For locating food and as well as sensing their nearby danger. Okay, now the first sensory organ which we are going to discuss in animals are sense of smell. ठीक है, देखिए, dogs have a very strong sense of smell which help them in locating people or objects because of this ability. They are used by police in rescue operations. सबसे ज्यादा जो सेंस ऑर्गन स्ट्रॉन्ग है एनिमल्स में, स्पेसिफिकली हमारे डोमेस्टिक कैटेगरी में, वो हमारे डॉग्स का होता है. इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स इनका यूज करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में. ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमारे आंट्स होते हैं. आंट्स स्मेल विद देयर थिन एंड लॉन्ग एंटेनी. इट हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज देयर मेट्स, फॉलो ट्रेल्स लेट डाउन बाय देयर मेट्स एंड फाइंड फूड. आंट्स क्या करते हैं? आंट्स के पास भी सेंस ऑर्गन्स है. ठीक है, ये इनके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं बहुत ही पतले और लंबे होते हैं, जिनका नाम होता है एंटेनी. ठीक है, और इसी की हेल्प से वो अपने मेट को यानी अपने पार्टनर को पहचानते हैं. साथ ही साथ जब आप लोगों ने देखा होगा चींटियां हमेशा एक लाइन में चलती हैं. ठीक है, तो उसी सेंस ऑर्गन का यूज करके वो उस पाथ को फॉलो करते हैं. ओके, इसके बाद बच्चों देखिए, जो हमारे स्नेक्स और लिजार्ड्स होते हैं. ठीक है, हमारे snakes and lizards keep on flickering their forked tongues to convey scent particles in the air to the pair of sensory organs located at the roof of their mouth. Okay, it helps them to know about their surroundings. इनके माउथ के पास जो इनका सेंसरी ऑर्गन होता है, ठीक है, ये इसका यूज करते हैं अपने मेट्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ कॉन्वर्सेशन करने में. ठीक है, इससे इन्हें पता चलता है कि आसपास क्या हो रहा है. ओके, सो यू कैन सी डॉग, ant and lizard. Okay, now my dear student, let's see a truth bank. While sleeping fish and snakes do not close their eyes as they do not have eyelids. देखिए, जब भी ये एनिमल्स सोते हैं, एक फिश है जिसका नाम स्लीपिंग फिश है, और स्नेक्स, ये कभी भी अपनी आंखें बंद करके नहीं सोते हैं. ठीक है, ऐसा लगेगा इनकी आंखें खुली हुई. अगर ये आंखें भी बंद करेंगे तो ऐसा लगता है खुली हुई. क्यों? क्योंकि इनके पास आईलिड्स नहीं होती हैं. ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा सेंस ऑर्गन पढ़ने वाले, सेंस ऑफ टच. ये क्या होता है? देखिए, जो कैट की विस्कर होती है. ठीक है, ये देखिए, जो कैट्स के पास विस्कर्स होती है, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव फीलर होती है. मतलब जो कैट्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. ठीक है, इनके पास एक स्पेशल हेयर होता है. ठीक है, आप लोगों ने देखा ना, बिल्ली के यहाँ चिन के पास और यहाँ माउथ के एरिया के पास या आंखों के नीचे इनके पास हेयर्स होते हैं. ठीक है, ये इन हेयर्स का यूज करते हैं डार्क साइड में. मीन्स जब अंधेरा हो जाता है तो ये इन
हेयर्स का यूज करते हैं फील करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखिए जो फिश होती है हमारी, फिश के पास भी बहुत ज्यादा डेवलप टच का सेंस ऑर्गन है, ठीक है। ये इनको मदद करता है कि पानी में किस हद तक का प्रेशर है, ठीक है। तो पानी के अंदर मौजूद प्रेशर को पता करने के लिए ये अपने सेंसरी, तो पानी के अंदर मौजूद प्रेशर को फील करने के लिए, उसके सेंस को फील करने के लिए वो अपने टच ऑर्गन का यूज करते हैं, ठीक है। और ये इनका टच ऑर्गन इनके हेड में और ट्रंक एरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद जो बर्ड्स होती हैं, तो बर्ड्स के जो टंग होता है, उनका पैलेट होता है, बिल होता है, ये सबसे ज्यादा इनका सेंसिटिव पार्ट होता है बर्ड्स का, ठीक है। ये इनका यूज करते हैं अपने आसपास के एरिया को फील करने के लिए, ठीक है। अब चलिए, अब सेंस ऑफ टच के बाद नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेंस ऑफ टेस्ट। अब टेस्ट क्या होता है देख लीजिए, बटरफ्लाइज, बीज और हाउस फ्लाइज जो होती हैं, ठीक है। बटरफ्लाइज, बीज और हाउस फ्लाइज हैं, इनका जो टेस्ट रिसीव करने वाला ऑर्गन है ये इनका पैर होता है, ये अपने पैरों से टेस्ट को रिसीव करती हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों जो अर्थवॉर्म होता है, ठीक है, अर्थवॉर्म की तो पूरी की पूरी बॉडी ही टेस्ट रिसेप्टर का काम करती है, इसीलिए इनको रिसेप्टर्स कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो हमारे स्नेक्स होते हैं, ठीक है, स्नेक्स अपने टंग का यूज करते हैं स्मेल करने के लिए, ठीक है। ये लोग अपने टंग का यूज करते हैं अपने खाने को स्मेल करने के लिए, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर बटरफ्लाई, अर्थवॉर्म एंड स्नेक्स, ठीक है। नाउ सेंस ऑफ हियरिंग, तो सेंस ऑफ हियरिंग कैसे है एनिमल्स के अंदर देख लीजिए। कुछ एनिमल्स जो हंट करते हैं, जैसे आपका टाइगर है, लेपर्ड है, लायन है, इनके पास बच्चों सुनने की ना बहुत गजब की क्षमता होती है, बहुत ज्यादा बढ़िया सुनते हैं, ठीक है। ये बहुत दबे पांव आते हैं और ये बहुत अच्छे से पता होता है कहाँ पे इनका प्रे है, ये उस डायरेक्शन में बहुत दबे पांव जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो हमारे क्रोकोडाइल्स होते हैं, ठीक है, क्रोकोडाइल्स के पास भी बहुत अमेजिंग हियरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। ये अपने छोटे बच्चे तक को सुन सकते हैं, ठीक है। इवन आपको पता है क्रोकोडाइल्स एक बहुत ही अमेजिंग एनिमल है, इनके पेट में जो इनका अंडा होता है ना, और उस अंडे के अंदर, ठीक है, उस अंडे के अंदर बच्चों इनका जो बच्चा होता है ना, ये उसको भी सुन सकते हैं ये, ठीक है। इतनी ज्यादा पावरफुल कैपेसिटी है हियरिंग इनकी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो स्पाइडर्स और कॉकरोचेस होते हैं, ठीक है, स्पाइडर और कॉकरोचेस अपने बॉडी में प्रेजेंट हेयर का और लेग का यूज करते हैं स्मेल करने के लिए, साउंड को सुनने के लिए, हियरिंग साउंड, ठीक है। मींस जो स्नेक्स, सॉरी, स्पाइडर और कॉकरोचेस अपने बॉडी में मौजूद हेयर का और अपने पैर का इस्तेमाल करते हैं सुनने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो हमारे चमगादड़ होते हैं यानी बैट्स, ठीक है, जो बैट्स होते हैं इनको पहले से ही पता होता है इनका प्रे कहाँ पे है, मीन्स शिकार कहाँ पे है, ठीक है। इसीलिए ये लोग बहुत ही ज्यादा हाई पिच की आवाज निकालते हैं, उस हाई पिच को कहा जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। और ये अल्ट्रासोनिक साउंड का वो अल्ट्रासोनिक साउंड अपने माउथ से या अपने नोज से वो निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, द इकोज ऑफ दिस साउंड हेल्प देम टू लोकेट देयर लोकेट बोथ फूड एंड ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। तो ये जितने भी हियरिंग साउंड्स ये एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं ना, ये इसका इस्तेमाल करते हैं अपने खाने को लोकेट करने के लिए, साथ ही साथ अपने किसी भी टाइप के प्रॉब्लम से बचने के लिए। नाउ सेंस ऑफ साइट, अब ये हमारे जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स है, देखते कैसे, देखिए जो बर्ड्स होती हैं बच्चों, इनकी ना बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट होती है, क्योंकि हवा में उड़ते हैं, ठीक है। इनकी जो आईज होती है ना, ये काफी बड़ा और शार्प इमेज प्रोड्यूस करती है, खास तौर पे उड़ते टाइम, ठीक है। जैसे कि कुछ बर्ड्स आप देख सकते हो, जैसे आपके ईगल्स, हॉक्स या वल्चर्स हैं, ठीक है। ईगल, हॉक या वल्चर्स ये काफी दूर, कई दूर किलोमीटर पे भी रहेंगे ना, इन्हें पता चल जाएगा इनका शिकार कहाँ पे है, ये इतनी ज्यादा इनकी आंखें तेज होती हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे जैसे जितने भी नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, मतलब नॉक्टर्नल एनिमल्स का मतलब क्या है, दोज एनिमल्स विच कैन सी ओनली एट नाइट, ओके। तो जैसे बैट है, आउल है, तो इनका ना सबसे बढ़िया नाइट विजन होता है, ये रात में बहुत अच्छे से देख सकती हैं, ठीक है। और ये कौन कौन सी चीजें खाती है, वो कैट्स को, माइस को, सॉरी, तो कौन कौन से वो एनिमल्स हैं हमारे जिनका बेस्ट नाइट विजन है, वो है आपका कैट, माइस, बैट्स, आउल और मोथ, ठीक है। ये वो एनिमल्स होते हैं बच्चों जिनकी आईसाइट रात में बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, तो रेप्टाइल्स जैसे कौन कौन से रेप्टाइल्स आप देख लीजिए, जैसे कैमोलियन है, ठीक है। कैमोलियन बच्चों देखिए, इनके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि अपनी आंखों को ना किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। कैमोलियन जो होता है ना, ये अपनी आंखों को किसी भी डायरेक्शन में ये लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो एक टाइम पे दो अलग अलग डायरेक्शन में देख सकते हैं, ठीक है।
और जब ये दो अलग अलग डायरेक्शन में देख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, एक डायरेक्शन में अपने खाने को देख सकते हैं और दूसरे डायरेक्शन में अगर कोई डेंजर है वो उसको भी सेंस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वन ट्रूथ बैंक, कौन सा ट्रूथ बैंक है देख लीजिए। मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली लाइक टाइगर एंड लेपर्ड्स आर द बेस्ट नाइट विजन। कैट फैमिली मेंबर के जो फैमिली मेंबर्स है, टाइगर और आपका लेपर्ड है, इनका सबसे बढ़िया नाइट विजन होता है, ठीक है। नाउ डू एनिमल्स स्लीप, क्या एनिमल्स सोते भी हैं, आइए देखते हैं। लाइक अस, देखिए हम लोगों की तरह बच्चों एनिमल्स को भी रेस्ट चाहिए और नींद चाहिए, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से सोते हैं, ठीक है। जैसे आपके जो काउज होते हैं, ठीक है, काउज अपनी आंखें खुली रख के सोते हैं। बैट्स कैसे सोते हैं, वो लटके रहते हैं, ठीक है, वो लटक के सोते हैं, ठीक है। इसके अलावा घोड़े, हॉर्सेस खड़े खड़े सो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं हमारे, ये लोग उड़ते हुए भी सो सकते हैं, ठीक है। नाउ एनिमल प्रोडक्ट्स, अब तक हम लोगों ने बहुत सारे सेंस ऑर्गन की बात कर ली, अब हम लोग उन प्रोडक्ट्स की बात करेंगे जो हमें एनिमल से मिलता है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिलता है एनिमल से, तो सबसे पहले हमारा क्लोथ है, ठीक है। क्लोथ और खाना दोनों चीजें हमें एनिमल से मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से वो सारे एनिमल्स हैं जो हमें ये सारी चीजें देखते हैं, आइए देखते हैं। जैसे आपका हैन, गोट और फिश है, ये हमें मीट देते हैं। फिर हमें उल कहाँ से मिलता है, शिप से मिलता है। इसके अलावा सिल्क, हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। और काउ, बफालो, गोट्स हमें मिल्क देते हैं, ओके। तो देखिए ये सिल्क वॉर्म है, ये आपका काउ, शिप और ये हैन, ठीक है। चलिए इसके अलावा और भी बहुत कुछ हमें मिलता है हमारे एनिमल से। क्या क्या चीजें हैं देख लीजिए। जो मुर्गियां होती हैं, ठीक है, मुर्गियां और बत्तख यानी हैंस और डक्स होते हैं, ये हमें एग्स देते हैं, ठीक है। लेदर हमें मिलता है एनिमल की स्किन से। तो कौन कौन सा एनिमल से, स्नेक और क्रोकोडाइल की स्किन से हमें लेदर मिलता है। इसके अलावा ऑयस्टर्स, ये सी में पाए जाते हैं, इनसे हमें पर्ल मिलता है, ठीक है। और बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे कि हॉर्स, कैमल, एलिफेंट्स, ये लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी एनिमल्स इन डेंजर। बहुत सारे एनिमल्स हमारे डेंजर में भी है, कैसे डेंजर में, आओ देखते हैं। वाइल्ड एनिमल्स को बच्चों हम लोग मार रहे हैं, ठीक है। हम लोगों में से जो हंटर और पोचर्स होते हैं ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स को मार रहे हैं। अब क्यों मार रहे हैं, उनके फर के लिए, उनके स्किन, बोन्स और हॉर्न्स के लिए और बाकी सारे बॉडी पार्ट्स के लिए। वो उनको मार्केट में सेल करते हैं, उनको बहुत अच्छे इसका दाम मिलता है, ठीक है। और पता है पोचिंग क्या होता है, मैंने नाम लिया ना पोचर्स, तो पोचिंग क्या होती है बच्चों, इलीगल तरीके से जब आप किसी भी जानवर को मारते हो उनके किसी भी बॉडी पार्ट के लिए, उसको कहा जाता है पोचिंग, ठीक है। और जो लोग ऐसा करते हैं वो पोचर्स कहलाते हैं। पोचिंग क्या है, पोचिंग की वजह से आज हमारे वर्ल्ड में बहुत से एनिमल्स ऐसे जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये एंडेंजर्ड एनिमल्स है, जैसे लायन, सॉरी टाइगर, टाइगर का भी बहुत ज्यादा हंटिंग हो रहा है, इसीलिए एंडेंजर्ड की कैटेगरी में, मतलब अगर हम लोगों ने टाइगर का ख्याल नहीं रखा ना, ये अपकमिंग समय में ये गायब हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा और कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनको मारा जा रहा है देख लीजिए। वो है आपके एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक और मस्क डियर। ये सारे लोग ना खत्म होने की कगार पे पहुंच चुके हैं, इनकी इतनी ज्यादा हंटिंग हो रही है, ठीक है। इसीलिए इन एनिमल्स को एंडेंजर्ड एनिमल्स कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए बच्चों एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। इसीलिए बच्चों हमारे वाइल्ड एनिमल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 1973 में, जिसका नाम है आपका प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देखिए टाइगर जो है ना, सिर्फ आज से नहीं कई सालों से इसकी हंटिंग की जा रही है, ठीक है। और इसी हंटिंग की वजह से बच्चों टाइगर की जो पॉपुलेशन है ना, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। इसीलिए टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट के अंडर कई सारे टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं जहां पे टाइगर्स आराम से रह सकते हैं और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नाउ हियर सम ब्रेन ब्लिट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे। What sense organs do we have? हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है, उनका नाम क्या है बताएंगे मुझे। Do animals have better sense organs than humans? क्या एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स हमसे अच्छे हैं, ये भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। Now my dear students, we are going to see the next topic of this chapter, how can we protect wildlife? हम लोग अपने वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करें। बहुत सी ऐसी रेयर स्पीशीज है जो बहुत कम अमाउंट में है, अगर हम लोगों ने उनका देखभाल नहीं किया वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, अननेसेसरी उन्हें मारना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा
इसके अलावा बच्चों जहां पे टाइगर रिजर्व्स, आपके वाइल्ड लाइफ पार्क्स, बायोस्फीयर्स है, इन सब जगहों पे ना ह्यूमन पॉपुलेशन की भी चेक करनी चाहिए, ह्यूमन पॉपुलेशन किस रेट में यहाँ पे रह रही है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम लोगों को बैन लगाना चाहिए, ठीक है, हम लोगों को बैन करना चाहिए किसी भी चीज, हम लोगों को बैन लगाना चाहिए उन चीजों पे जो हमें एनिमल्स को मार के मिलता है, ठीक है। अंडरटेक एफॉरेस्टेशन, और साथ ही साथ हमें और ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि फॉरेस्ट बढ़ सके, ठीक है। अब बच्चों हम लोग ये देखेंगे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने में काम कर रहे हैं। तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन एनिमल्स को बचाने में काम कर रहे हैं? तो सबसे पहले है बच्चों पेटा, ठीक है। पेटा वर्ल्ड का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे एनिमल्स को बचाने के लिए काम कर रहा है। पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल्स को बचाने के लिए, ठीक है। और पेटा का मेन मोटो ये है कि लेदर का यूज आप मत कीजिए, क्योंकि अगर लेदर से बने हुए कपड़ों का, मीन्स लेदर से बने हुए बेल्ट, शूज, जैकेट्स, पर्स का आपको शौक है, इसका मतलब कि आप एनिमल को मार रहे हो, ठीक है। तो पेटा पेटा वो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्ट्रिक्टली मना करता है इस चीज के लिए, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है? पीएफए है, तो पीपल फॉर एनिमल, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे कैंपेन्स को लॉन्च करता है एनिमल्स की क्रुएल्टी के साइड, ठीक है। So this is all about our chapter. Now come with me, and let's see the quick recap of this chapter. क्या सीखा हमने इस चैप्टर में? तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर में ये सीखा है कि हम ह्यूमंस की तरह एनिमल्स भी अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, और किसी भी तरीके के डेंजर से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और सारे एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या देखा हमने इस चैप्टर में? देखिए बहुत सारे एनिमल्स जो हैं अगर हमने उनका टेक केयर नहीं किया वो खत्म हो जाएंगे, यानी वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे आने वाले समय में, ठीक है। इसीलिए हम सब लोगों को हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ जस्ट गो थॉरली थ्रू दिस चैप्टर एंड कंप्लीट योर सेल्फ इवैल्यूएशन एक्टिविटी। Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.